سیکرٹ ایجنسی قصہ نمبر 16۔ مائیکل جب گھر پہنچا تو شام کا دھندلکا پھیل رہا تھا۔ وہ اگرچہ بہت تھک چکا تھا لیکن اس کا حوصلہ بلند تھا۔ صبح پولیس ہیڈ کوارٹر سے رہائی ملنے کے بعد اس نے دن کا بیشتر حصہ بارنی اور یہودی ڈیفنس لیگ کے دوسرے ممبروں کے ساتھ گزارا تھا۔ دوپہر کا کھانا انہوں نے اکٹھے ہی ایک ریسٹورنٹ میں کھایا تھا جس کی کھڑکیوں سے اولڈ سٹی میں دیواریں گرے کا دلچسپ منظر نظر آ رہا تھا۔ بارنی نے مائیکل کی کارروائی کو بے حد سراہا تھا۔ مائیکل نے اسے بتایا تھا کہ اس کارروائی پر عمل کرنے سے پہلے اس کی باقاعدہ ریہرسل کر چکا تھا۔ اس نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ یروشلم میں مسجدوں اور گرجوں کا وجود برداشت نہیں کر سکتا جہاں عیسائی اور مسلمان تو دندناتے پھر رہے ہوں اور یہودی سہمے رہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ یروشلم یہودیوں کا ہے، اس پر کسی دوسری قوم کا حق نہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ دوسری قوموں کو یہاں سے نکال باہر کیا جائے۔ اس کے خیال میں دنیا کو اب یہ حقیقت مان لینی چاہیے کہ یروشلم اب صرف اور صرف یہودیوں کا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے مزید کہا، تم لوگ بھی تو اسی کاز پر کام کر رہے ہو۔ ایتھوپیا کے چرچ کی دیواروں پر تم ہی لوگوں نے نعرے لکھے تھے۔ یہ کئی روز پہلے کی بات ہے، بارنی نے جواب دیا، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ کاہن اور ہمارے 2 آدمی جیل میں ہے، پولیس ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، لیکن انہیں ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل رہا۔ اس کے علاوہ دوسری مذہبی تنظیمیں بھی ہماری بھرپور مخالفت کر رہی ہیں، اس لیے ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ اس میں شبہ نہیں کہ آج صبح تم نے بڑی ہمت کا ثبوت دیا ہے، لیکن جوش کے ساتھ ہوش کو محفوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ لیکن ہمیں ہمارے لیے باتوں کی نہیں، عمل کی ضرورت ہے۔ مائیکل نے گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے خیال میں بارنی اس کے ساتھی اس کے نظریات سے پوری طرح قائل ہو چکے تھے۔ فی الحال کسی ایکشن کی ضرورت نہیں۔ مائیکل نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم زیر زمین رہ کر مناسب وقت کا انتظار کریں۔ جب وقت آئے گا تو ہم خاموش نہیں بیٹھے رہیں گے، اور یقین کرو اس وقت ہم صرف دیواروں پر نعرے لکھنے پر اکتفا نہیں کریں گے۔ بارنی نے جن جذبات کا اظہار کیا تھا اس پر مائیکل کو بے حد حیرت ہوئی۔ مزید حیرت اس بات پر ہوئی تھی کہ پورے ملک میں ان کی تعداد 50-60 سے زیادہ نہیں تھی، لیکن مائیکل کو ان کی تعداد سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اس کے اصل بات تو یہ تھی کہ وہ ان کے گروہ میں شامل ہو چکا تھا۔ یہ لوگ اب جو بھی فیصلہ یا کارروائی کریں گے مائیکل اس سے بے خبر نہیں رہے گا۔ جب وہ ان سے رخصت ہوا تو مائیکل نے اس کا فون نمبر لینے کے علاوہ اپنا فون نمبر بھی اسے دے دیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ دن میں کم از کم ایک مرتبہ ٹیلی فون پر ان سے رابطہ ضرور رہے گا۔ مائیکل کو یقین تھا کہ یہودی ڈیفنس لیگ نے یروشلم میں مسلمانوں کے مجوزہ امن مارچ کے سلسلے میں کسی کارروائی کا منصوبہ بنایا تو اسے بھی معلوم ہو جائے گا، اور وہ قبل از وقت ملر اور اس کے ساتھیوں کو اس منصوبے سے آگاہ کر دے گا۔ اس کا خیال تھا کہ ایسی کوئی اطلاع ملنے پر الفریڈ ملر اس پر بجا طور پر فخر کرے گا۔ مائیکل یہی کا سب کچھ سوچتا ہوا یہودیوں کے محلے میں واقع اپنے فلیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی رہائشی عمارت کے سامنے کھلی جگہ پر بچے کھیل رہے تھے۔ بیرونی زینے کے قریب گندمی رنگت والی ایک لڑکی کھڑی تھی، وہ غالباً عرب تھی۔ مائیکل جب قریب سے گزرا تو لڑکی نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے ڈھیلے ڈالے سرخ رنگ کے لباس پر براؤن رنگ کا پرانا سا کارڈیگن پہن رکھا تھا۔ لباس ڈھیلا ہونے کے باوجود اس کے جسم کے خطوط نمایاں ہو رہے تھے۔ اس نے سر پر اسکارف باندھ رکھا تھا جن سے سیاہ بالوں کی چند لٹیں اسکارف سے نکل کر اس کی پیشانی پر جھول رہی تھی۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے مائیکل یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکا کہ اگر وہ فیشن ایبل ہوتی تو اس کا حسن مزید نکھر سکتا تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر مائیکل نے دروازہ بند کر دیا، ایک گلاس میں شراب اونڈیلی، ایک سگریٹ سلگایا اور ایک طرف پڑی ایزی چیئر پر نیم دراز سا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ اس کا پورا دن اگرچہ بڑی مشقت میں گزرا لیکن بالآخر اس نے اپنے مقصد میں ناکامی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے گلاس سے مشکل ایک چسکی لی ہوگی کہ دروازے پر دستک کی ہلکی سی آواز ابھری۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس مرتبہ دروازہ ایک مرتبہ پھر کھٹکایا گیا۔ انداز ایسا تھا جیسے دستک دینے والا جلدی میں ہو۔ مائیکل ایک لمحے کو ہچکچایا، پھر اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ اس کے سامنے وہی عرب لڑکی کھڑی تھی جسے اس نے زینے کے قریب دیکھا تھا۔ مجھے اندر آنے دو پلیز، لڑکی نے انگریزی میں کہا۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ سی تھی۔ مجھے الفریڈ ملر نے بھیجا ہے۔ مائیکل ایک طرف ہٹ گیا۔ لڑکی کے اندر داخل ہوتی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا متحیر نگاہوں سے لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے کسی آدمی کی آمد کی توقع تھی، لڑکی کی نہیں، لیکن اسے خیال آیا گیا کہ ملر نے یہ نہیں کہا تھا کہ آدمی اس سے رابطہ قائم کرے گا۔ وہ اپنے ملر کے درمیان ہونے والی گفتگو یاد کرنے لگا۔ ملر نے کہا تھا، مشرقی یروشلم میں ہمارا ایک عرب دوست موجود ہے، اور دوست کوئی لڑکی بھی ہو سکتی تھی، ہمیں شاید کسی عورت کے آنے کی توقع نہیں تھی، لڑکی نے کہا۔ اس نے غالباً اس کے چہرے سے اس کی خیالات پڑھ لیے تھے۔ ہمارے گروپ میں عورتوں کو مردوں کے برابر ہی سمجھا جاتا ہے۔ مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ کون سا گروپ؟ مائیکل اس کی بات کاٹ دی۔
लड़की चंद लम्हों को खामोश रही। इसे माइकल की मदाखलत पसंद नहीं आई थी। कुछ देर तक माइकल को घूरती हुई आखिर बोली, वो ग्रुप जो अल्फ्रेड मिलर को इसके मंसूबे में मदद दे रहा है, क्या तुम उस मंसूबे के बारे में कुछ जानती हो? माइकल ने पूछा। इसके साथ ही इसे ख्याल आया कि वो दोनों भी तक खड़े थे। बैठ जाओ। इसने सोफे की तरफ इशारा किया। कुछ पीना पसंद करोगी? नहीं, मैं खड़े खड़े ही बात करूंगी, लड़की ने जवाब दिया और फिर मेज़ पर रखी हुई शराब की बोतल और गिलास की तरफ इशारा करते हुए बोली, मुझे इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं। इसके रवैये की तंदी देखकर माइकल के ज़हन को झटका सा लगा। वो कंधे झुकाते हुए बैठ गया। इसने अपना गिलास भी उठा लिया था। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो लड़की की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें मिलर के मंसूबे के बारे में मालूम है? लड़की ने सर पर बंधा हुआ स्कार्फ खोलकर सर को हल्का सा झटका दिया। सियाह रेशमी बाल इसके कंधों पर बिखर गए। माइकल के मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। वो वाकई खूबसूरत लड़की थी, लेकिन इसके चेहरे पर अब भी करख्तगी के तासुरात थे, जिससे इसका हुस्न मुतासिर हो रहा था। मेरा जवाब नफ़ी में है, इसने जवाब दिया। मैं इसके मंसूबे के बारे में कतई कुछ नहीं जानती। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मैं तुम्हारे लिए अरब वाले इलाके में एक कमरा तलाश करूं। लड़की के मुंह से निकलने वाले आखिरी अल्फाज में नफरत की हल्की सी झलक भी मौजूद थी। माइकल अपने आप में एक अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा। वो इससे पूछना चाहता था कि वो इस कदर सर्द बोहरी का मुजाहरा क्यों कर रही है, लेकिन फिर इसने अपना इरादा बदल दिया। वो दोनों एक ही मिशन पर काम कर रहे थे। अगर वो लड़की सर्द मोहरी का मुजाहरा कर रही थी तो इसका ज़ाती फेल था, जबकि मिशन के सिलसिले में वो इससे भरपूर ताउन कर रही थी। क्या तुमने कमरा तलाश कर लिया है? इसने पूछा। हाँ, लड़की ने जवाब दिया। ये काम इतना आसान नहीं है। मशरकी यरूशलेम के रहने वाले किसी यहूदी को अपने मकान का कोई हिस्सा देने को तैयार नहीं होते। यही वजह है कि हम इतने रोज़ तक तुमसे कोई राब्ता कायम नहीं कर सके। कमरा हमें कल ही मिला है और अब मैं करीबन 1.5 घंटे से जीने की करीब खड़ी तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। अब चलें, इसमें देर नहीं करनी चाहिए। अभी माइकल के लहजे में बेचैनी थी। इतनी जल्दी भी क्या है? हम कल सुबह चले जाएंगे। नहीं, लड़की ने नफ़ी में सर हिलाया। हमें आज ही वहाँ जाना है। माली मकान लीज पर दस्तखत करने के लिए हमारा इंतज़ार कर रहा है। अगर हमने बात कर पर टाल दी तो मामला ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। माइकल गहरा सांस लेते उठ गया और कोट पहनते हुए पूछा, कमरा कहाँ है? ज़्यादा दूर नहीं जाना होगा, यहाँ से सिर्फ 10 मिनट का पैदल रास्ता है, सेंट एलिना रोड के बिल्कुल करीब। सेंट हेलिना? माइकल ने हैरत से कहा, ये दरिया डोलोर्सा के करीब? हाँ, यही समझ लो, लड़की ने जवाब दिया और दोनों कमरे से निकलकर सीढ़ियाँ उतरने लगे। इस मामले में तुम अपने आप को खुशकिस्मत समझ सकते हो। इस कमरे की एक खिड़की दुनिया के अजीमतरीन चर्च होली स्पोल्कर की तरफ खुलती है। तुम्हारा नाम क्या है? माइकल ने सर हिलाते हुए पूछा। लड़की चंद लम्हे खामोश रही, फिर मध्यम लहजे में जवाब दिया, लतीफ़ा। लतीफ़ा हुसैनी की ज़िंदगी का ये पहला मौका था कि इसने किसी यहूदी से इतनी तवील गुफ्तगू की थी। इसका मतलब ये नहीं था कि इसे कभी किसी यहूदी से बात का मौका नहीं मिला था। यहूदी अक्सर अरब इबादत वाले इलाके में सैर व तफरीह या शॉपिंग के लिए आते रहते थे और वो अरबों से बातचीत भी करना चाहते थे। कई यहूदियों ने कई मरतबा लतीफ़ा से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हमेशा इनकी हौसला शिकनी करती रही थी। लतीफ़ा की परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई थी जहाँ बच्चों को यहूदियों से नफरत करना सिखाया गया था। यहूदियों से नफरत और इसके रगों में दौड़ने वाले खून का एक हिस्सा बन चुका था। लतीफ़ा 1948 में उस वक्त पैदा हुई जब इसराइली रियासत वजूद में आई थी और इसके नतीजा में 10 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी अरबों को अपना घर बार छोड़कर मशरिक़ वस्ता के दीगर मुल्कों में पनाह लेना पड़ी थी। लतीफ़ा जब स्कूल में दाखिल हुई तो इसकी कोर्स की किताबों में मुसलमानों के साथ यहूदियों के जुल्म व सितम की दास्तानें मौजूद थी। यहूदी वहशी भेड़िए, दरिंदे और कातिल थे। स्कूल की किताबों में यह भी लिखा था कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि अरब मुत्तहिद होकर यहूदी रियासत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, लेकिन सूरत हाल अब तक इसके बरअक्स साबित हुई थी। 1967 में यहूदियों और अरबों के दरमियान पहली बाकायदा जंग छिड़ गई। लतीफ़ा के गांव के लोग पहले तो बहुत खुश हुए कि अब यहूदियों का खात्मा हो जाएगा। रेडियो पर भी बार बार यही ऐलान होते रहे कि दरिंदा सिर्फ तो यहूदियों को इनके अपने खून के दरिया में गर्क कर दिया जाएगा। लेकिन एक रोज़ अचानक ही इसराइली फौजी दस्ते इनके गाँव के निवाब में पहुँच गए। गाँव वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इनका ख्याल था कि यहूदी फौजी किसी न किसी तरह यहाँ तक पहुँच तो गए हैं, लेकिन अब जिंदा वापस नहीं जा सकेंगे। जैसे ही उर्दन, मिस्र और शाम के फौजी दस्ते इधर का रुख करेंगे, वो इसराइली फौजी दस्तों को धकेलते हुए तिल अबीब तक ले जाएंगे। लेकिन फिर बतदरीज ये खबरें आने लगी कि उर्दन, शाम और मिस्र के फौजी दस्ते यहूदियों से शिकस्त खाकर पीछे हट रहे हैं। इराकी एयरफोर्स को भी यहूदियों के हाथों काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। इसराइल ने अरबों को शिकस्त देकर सैनाई, गोलान हाइट्स और यरूशलेम पर कब्जा कर लिया।
वेस्ट बैंक पर भी यहूदियों का तसल्लुत कायम हो चुका था। लतीफ़ा अक्सर अपने बड़े भाइयों से पूछती थी कि सब कुछ कैसे हो गया। इसे ये जवाब मिलता था कि अरबों का आपस का निफाक ने डूबा है। यहूदियों को फ़लस्तीन से निकालने के लिए नौजवान और पुरजोश अरबों ने अल-फतह के नाम से एक इनकलाबी तंजीम बनाई थी। लतीफ़ा के भाइयों का कहना था कि अगर तमाम अरब नौजवान अल-फतह में शामिल हो जाएं तो वो इसराइली रियासत का वजूद मिटाकर एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम कर सकते थे। इसके दोनों भाई अल-फतह में शामिल हो गए, जिस पर लतीफ़ा को बजा तौर पर फ़ख्र था। और फिर एक रोज़ कमांडर कारों और ट्रकों में लदे हुए इसराइली फ़ौजी गांव में दाखिल हुए और लतीफ़ा के मकान को घेरे में ले लिया। एक कार में से इनके दोनों भाई भी मौजूद थे। इनके हाथ पुष्प पर बंधे हुए थे। दूसरी कार में सवार एक यहूदी फ़ौजी ऑफिसर ने नीचे उतरकर बताया कि इनके दोनों भाइयों ने यरूशलेम के वस्त में आतिशगीर मादे से लदी एक कार को धमाके से उड़ा दिया था, जिसके नतीजे में कई अफराद हलाक हुए थे। इन दोनों को कई साल तक जेल की रोटियां खाना पड़ेगी। इसके अलावा बरतानवी कानून के मुताबिक इनके मकान भी मिस्मार कर दिए जाएंगे। लतीफ़ा उस वक्त 14-15 साल की रही होगी। वो एक ऊंचे टीले पर अपनी माँ से लिपटी खड़ी अपने मकान की तरफ देखती रही, जिसे चंद मिनट बाद धमाके से उड़ा दिया गया। मकान का मलबा दूर दूर तक बिखर गया और देर तक इससे धुआं उठता रहा। लतीफ़ा ने यकायक अपने सहारे खड़े हुए माँ से कहा था, मैं भी बड़े होकर अल-फतह में शामिल हो जाऊंगी। वो जैसे जैसे बड़ी होती गई, इसके दिल में यहूदियों के लिए नफरत बढ़ती गई। इसके घर वाले गांव छोड़कर मशरकी यरूशलेम में आबाद हो गए थे। लतीफ़ा आज़ादी से उन अरब नौजवानों से मिलती रही जिन्होंने इसराइल को मिलामेट करने के लिए अपनी ज़िंदगियां दांव पर लगा रखी थी। वो अल-फतह के एक मखसूस शोबे में शामिल हो गई और यहूदियों के खिलाफ मुजाहरों, हड़तालों और तकरीबी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेने लगी। दिन के वक्त तो लतीफ़ा मशरक़ी यरूशलेम में शाये होने वाले अखबार रोज़नामा अल-फजर में सेक्रेटरी की हैसियत से काम करती और शाम के बाद रात गए तक इसका वक्त अल-फतह के मेंबरों से खुफिया मीटिंग्स में खर्च होता। गुज़श्ता रोज़ इसके शोबे के इंचार्ज नवाब ने इसे पुराने शहर में अरब आबादी के इलाके में एक कमरे तक जाने की हदायत की थी। नवाब के बयान के मुताबिक कमरे का इंतखाब कर लिया गया था। नवाब ने मालिक के मकान को बताया था कि अल-फतह के अहकामात के मुताबिक ये कमरा एक अमरीकी यहूदी के लिए लिया जा रहा है। इससे लतीफ़ा को हदायत की थी कि इस यहूदी को लेकर मकान पर पहुंच जाए ताकि लीज़ के कागजात पर दस्तखत हो सके। नवाब ने इसे ये भी बता दिया था कि इस यहूदी का नाम माइकल गॉर्डन है और वो यहूदी आबादी वाले इलाके में रहाइश पजीर था। नवाब ने शनाख्ती अल्फाज भी बता दिए थे। सोकुल हसर और मुरिस्तान रोड से होते हुए यरूशलेम के सबसे बड़े क्रिश्चियन चर्च की तरफ चलते हुए लतीफ़ा सोच रही थी कि आज के बाद वो माइकल से नहीं मिलेगी। वो अगरचे एक नफीस इंसान लगता था, लेकिन लतीफ़ा को इसकी दोस्ती की ज़रूरत नहीं थी। वो तो इसके साथ सड़क पर चलते हुए भी कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। नवाब के कहने के मुताबिक हो सकता है कि माइकल इनका हमायती हो, लेकिन इसे इसकी परवाह नहीं थी। इसके ख्याल में तमाम यहूदी एक जैसे ही थे। वो सड़क पर बनी हुई एक बड़ी सी मेहराब से गुजरते दूसरे पहुंच गए। अब वो चर्च इनके सामने था, जिसकी मुरम्मत का काम हो रहा था। लकड़ी के टुकड़े और पत्थर वगैरह चारों तरफ बिखरे हुए थे। लतीफ़ा तारीकी में सीमेंट के एक ब्लॉक से टकरा कर लड़खड़ा गई। अगर माइकल फौरन से बाजू से न पकड़ लेता तो यकीनन गिर पड़ती। लतीफ़ा ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। माइकल ने इस वक्त भी इसके चेहरे पर नफरत और हिकारत के तासुरात देखे थे। यह है वो मकान। लतीफ़ा ने एक तरफ इशारा किया। कमरा फर्स्ट फ्लोर पर है। मालिक मकान का ख़ानदानी नाम मिस्त्री है। ऊपर चले जाओ, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। लीज़ पर दस्तखत करने के बाद वो कमरे की चाबी तुम्हें दे देगा। क्या तुम ऊपर नहीं आओगी? माइकल ने हैरत से इसकी तरफ देखा। नहीं। लतीफ़ा ने नफ़ी में सर हिला दिया। अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि बाकी का काम तुम्हें ही अंजाम देना है। एक मिनट। माइकल ने हाथ के इशारे से रोक लिया। किसी गड़बड़ की सूरत में मुमकिन मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़े। अगर तुम चली गई तो मैं तुमसे किस तरह राब्ता कायम रख सकूंगा? वो तकरीबन 1000 मुरब्बा गज पर पत्थरों से बना बहुत बड़ा मकान था। इस मकान के ऐन सामने चौराहे की दूसरी तरफ ईसाइयों का मुकद्दस तरीन गिरजा चर्च ऑफ होली स्पोकलर था। इस चर्च में हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी और इबादत करने वालों की भिनभिनाहट जैसी मध्यम आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। माइकल लतीफ़ा के साथ इमारत की डेढ़नुमा गेट में दाखिल हो गया, जिसके एक तरफ पत्थर पर यूनानी ज़ुबान में कोई तहरीर कंदा थी। वो सीढ़ियाँ तय करते हुए एक छोटे से खुले टेरिस में पहुँच गए। एक दीवार पर पुराने तर्ज की 2 लालटेनें लगी हुई थी, जिनकी जर्द रोशनी कुछ अजीब सा तासुर दे रही थी। दीवारों के साथ पौधों के बड़े बड़े गमले बड़े सलीके से रखे हुए थे। इस टेरिस की मगरबी समत 3-4 सीढ़ियाँ थीं, जो एक बड़े टेरिस की रहनुमाई करती थी। इस टेरिस पर कई दरवाजे खुलते थे। ब्राउन रंग के एक दरवाजे पर धुंधले शीशे वाला पीतल भी लगा हुआ था। दाईं तरफ एक खिड़की थी, इस पर भी धुंधला शीशा लगा हुआ था। दस्तक देने पर एक औरत बाहर निकल आई।
जिसने स्याह रंग का लिबादा इस तरह ओढ़ रखा था कि इसके चेहरे के अलावा इसका पूरा जिस्म छुप कर रह गया था। वो इनकी तरफ देखकर मुस्कुराई और सीढ़ियों वाले दरवाजे में गायब हो गई। माइकल ने उलझी हुई निगाहों से लतीफ़ा की तरफ देखा। ये एक यूनानी नन है, लतीफ़ा ने खुश्क लहजे में कहा। ये इमारत दरअसल यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च की मलकियत है। सिर्फ ये 2 कमरे, इसने अपने पीछे कमरों की तरफ इशारा किया, मिस्री फैमिली को लीज किए गए हैं। अदनान मिस्री चौराहे पर वाक़ यूनानी चर्च का निगरान है। जब से इसके बेटे से छोड़ गए हैं वो अपनी बीवी के साथ अकेला यहाँ रहता है। इनके लिए एक ही कमरा काफ़ी, इसलिए दूसरा कमरा वो किराए पर दे रहे हैं। इसी लम्हे दूसरे कमरे का दरवाज़ा खुल गया। एक भारी भरकम बूढ़ा आदमी बाहर निकला और मिचमिचाती आंखों से इनकी तरफ देखने लगा। इसने एक हाथ में ऐनक पकड़ रखी थी। इसने ऊनी शर्ट पर एक पुराना सा कोट पहन रखा था। इसकी पतलून भी खासी बोसीदा थी, लेकिन पैरों में स्लीपर नए थे जो खूब चमक रहे थे। इसने ऐनक लगाकर एक बार फिर इनकी तरफ देखा और लतीफ़ा को पहचान कर मुस्कुरा दिया। गुड इवनिंग, वो टूटी फूटी अंग्रेजी में बोला। इसका रुख माइकल की तरफ था। अंदर आ जाओ प्लीज़। तो दोनों इसके साथ अंदर आ गए। खासा बड़ा कमरा था जो सामान से भरा पड़ा था। इस लम्हे मिस्री की बीवी भी किसी तरफ से निकलकर इनके सामने आ गई। माइकल और लतीफ़ा पलंग के सामने पड़ी हुई बोसीदा सी कुर्सी पर बैठ गए। मिस्री की बीवी कॉफ़ी लेकर आई, जबकि अदनान मिस्री ने नायलून के एक बैग में से कुछ कागजात निकाल लिए। मुझे बताया गया था कि तुम कमरा किराए पर लेना चाहते हो, वो माइकल की तरफ देखते हुए बोला। इसके बाद जो भी गुफ्तगू हुई वो खासी मुख्तसर रही थी। माइकल ने किराए के बारे में भी किसी किस्म की बारगेनिंग नहीं की। बूढ़े ने सिर्फ टॉयलेट और बाथरूम वगैरह के बारे में समझा दिया। माइकल इस बात में सर हिलाता रहा। वो बूढ़े की बातों पर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। इसे रहना तो था नहीं जो बूढ़े की बातों पर तवज्जो देता। इस बारे में मिलर की हदायत बिल्कुल वाज़ेह थी। वो कमरा तो अपने नाम पर लेगा, लेकिन अमन मार्च के प्रोग्राम के सिलसिले में वो कमरा खाली रखा जाएगा। इसे वक्तन फ़ोक्तन ये आकर चेक करना था कि इस दौरान कमरा किसी और को ना दे दिया जाए। माइकल ने दस्तखत करके अदनान मिस्री को 1 महीने का पेशगी किराया दे दिया और कागजात की एक कॉपी लेकर जेब में डाल दी। अब इसे सिर्फ इतना करना था कि सुबह मुकामी पुलिस स्टेशन जाकर किरानामा दिखाने के बाद पुलिस से सर्टिफिकेट लेना था। क्या मैं कमरा देख सकता हूँ? उठते हुए बोला। क्यों नहीं, मिस्री भी कहते हुए उठकर इसकी मेज़ की दराज चाबी निकाली और माइकल और लतीफ़ा को इशारा करता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। टेरिस में आकर इसने बाएं जाने वाले दरवाजे का ताला खोला और अंदर दाखिल होकर लाइट जला दी। माइकल को हैरत का एक शदीद झटका लगा। ये कमरा किसी ड्रॉप बेसमेंट का दफ्तर नज़र आता था, जहाँ ड्राइंग बोर्ड, स्लाइड रूल्स और इस किस्म की मुतअद्दिद चीज़ें पड़ी थीं। एक मेज़ पर एक अधूरे नक्शे के करीब लातादाद पेनें, पेंसिलें और मुख्तलिफ रंगों की रोशनाइयाँ रखी हुई थीं। यहाँ पहले एक इंजीनियर रहता था। लतीफ़ा ने मिस्त्री से अरबी में बात करने के बाद माइकल को बताया, वह इंजीनियर कल सुबह यहाँ से रुखसत हो रहा है। इसके बाद ये कमरा तुम्हारा होगा। गुड। माइकल सर हिलाते हुए खिड़की के करीब पहुँच गया। खिड़की के ऐन सामने चौराहे की दूसरी तरफ ईसाइयों का अजीम तरीन गिरजा, होली स्पोकलर चर्च का दाखिली गेट था। माइकल ने फ़ौरन फैसला कर लिया कि वो दिन में भी किस वक्त यहाँ ज़रूर आएगा, क्योंकि इसके ख्याल में चर्च में ज़ायरीन की आमदोरफ्त का मंजर खासा दिलचस्प होगा। मिलर ने जिस किस्म के कमरे के लिए कहा था, इसकी ज़रूरत के ऐन मुताबिक था। वो मिस्री का शुक्रिया अदा करते हुए लतीफ़ा के साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ़ा। सड़क पर पहुंचकर इसने लतीफ़ा की तरफ हाथ बढ़ा दिया। तुमसे मुलाकात बहुत खुशगवार रही। लतीफ़ा ने भी हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन सिर्फ उंगलियों की पोरे छूते ही इसने हाथ पीछे खींच लिया। खुदा हाफिज़, इसने खुश्क लहजे में कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए एक तरफ रवाना हो गई। मुअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, दास्तान अभी जारी है।